Dear students, today I am going to teach you the concluding part of the story, The Necklace. In this part, we will talk about the four important topics. The first one is the life of the Loyals after they decided to pay back the debts. The next is the steps they take to save money. Third one is changes in Matilda's life, and the last one is the lesson that we learn. My dear students, the missing of the diamond necklace was not an ordinary event for Matilda. It was so great and shocking an event that came to change the life of Loyals altogether. Particularly for Matilda, it proved too much. First of all, when she came to know that the borrowed diamond necklace was lost, the glow of her youthfulness faded. When her husband went out in search of the diamond necklace and returned home empty-handed, she became all the more shocked. And the intensity of the shock was so much that she began to appear 5 years older. But dear students, this was just the beginning of her trouble. The worst was to follow. And it followed. Matilda had to undergo the horrible life of necessity. Both the husband and the wife had to decide and looked for the ways they could save money so that they could be able to pay back the debt of 18,000 francs, you remember. Okay? How did they do it? सबसे पहले मिसेस ये लॉयजल परिवार ने यह निश्चय किया कि परिवार के प्रत्येक दिन के खर्च में कटौती किया। बच्चों, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम ये जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में बचत का मतलब होता है ज़रूरतों में कटौती करना, तभी हम कहीं जाकर कुछ पैसे सेव कर पाते हैं। Mr. Loisel was an economical clerk and he got a limited amount as salary. And whatever the amount he got as salary was spent over the domestic affairs, and there was no opportunity for him to save any sou for the future use. But now the necessity has fallen and they were compelled to do it. How did they do? First of all, the housemaid was removed. बच्चों, मिस्टर लोइजल क्लर्क जरूर थे, लेकिन उनका यह प्रयास था कि वाइफ को अधिकतम सुख प्रदान किया जाए, चाहे जो ही साधन उनके पास मौजूद थे। उन्होंने घर में एक हाउसमेड को रख रखा था और इस हाउसमेड का काम था किचन में खाना बनाना, किचन के जूठे बर्तनों को साफ करना, नीचे से पानी छत पे लाना। उनके ऊपर में वाटर टैप नहीं था, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से पानी को ऊपर ले जाना, बकेट बाई बकेट ऊपर ले जाना, मार्केट जाकर ये सब्जियां लाना,
और अदर ग्रोसरीज का आइटम लाना, ठीक है, सारे कपड़ों को साफ करना, ये सभी हाउस मेड के वर्क थे। जो इस इकोनॉमिक क्लर्क ने मैटिल्डा को सुख पहुंचाने के लिए रख रखा था, वह चाहता था कि उसकी वाइफ की ब्यूटी बड़ी दिनों तक बनी रहे, उसका सुंदर सा हाथ खराब न हो, उसको रिमूव कर देना पड़ा। सेकेंड कंप्रोमाइज that was done by the Loisel family was that they changed their logics. You know, Mr. Loisel used to live in a rented apartment, but the monthly rent was very high. So now the time had come for Mr. Loisel to change the costly apartment and move for a cheap one. उन्होंने अपना लॉजिंग चेंज किया। क्या कहा, तो जिस अपार्टमेंट में मैटिल्डा रहती थी वह अपार्टमेंट ही उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके वाल सैविज थे। और अब स्थिति यहाँ आ गया है, ऐसा आ गया कि उसको और भी ख़राब मकान में जाने की नौबत आ गई। इस बार मैटिल्डा को कोई शिकायत नहीं था। तीसरा चेंजिंग उन्होंने यह किया कि उनके पास उनके पास जो भी पैसे थे, ठीक है, उस पैसे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खर्च किया जाए, ठीक है, उस पैसे का मिसयूज को रोक दिया जाए। एक नेक्स्ट ऑप्शन उनके पास यह था, और इसके लिए यह जरूरी था कि जो ज़रूरत का जो खर्चा है, ठीक है, उसमें कमी की जाए, ठीक है, और ऐसा करने के लिए वो कंपेल्ड थे और ऐसा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप उन्होंने यह लिया कि वह जिस अपार्टमेंट में, न्यू अपार्टमेंट में किराया लेकर रहने के लिए गए, उसमें 4 या 5 कमरे थे जो कि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ले रखा था, लेकिन उन्होंने उस अपार्टमेंट के कुछ कमरे को रेंट पर लगा दिया, पेइंग गेस्ट को दे दिया, ताकि उससे भी वह कुछ पैसा कमा सके। So this way the Loisel family took the initial steps to save money as well as to earn money. Okay? What changes visited Mrs. Loisel? Mrs. Loisel was badly affected by this situation. She had to be the mistress of all the household affairs, all the domestic works. She cooked food in the kitchen. She washed dirty clothes, linen, other kitchen clothes. She went down with the refuse to leave that in the street each morning. She had to brought up water in the bucket from the ground floor to the top one. She used to go to market in ordinary dresses. वह किराना की दुकानदार के पास जाती थी, वह फल विक्रेता के पास जाती थी, वह मांस विक्रेता के पास जाती थी। अर्लियर वह जब एक तो कभी मार्केट जाती नहीं थी, लेकिन अब जब वह मार्केट जाने लगी उससे इस बात का ख्याल रहता था कि वह जितने रुपए लेकर मार्केटिंग करने के लिए निकली है सभी रुपए खत्म ना हो, उसमें से कुछ रुपए बचा लिए जाए। इसलिए वह दुकानदारों से बार्गेनिंग करती थी, मोल भाव करती थी, और मोल भाव करके वह सू बाई सू, इंडियन कंडीशन में कहें तो पैसे हर पैसे, वह सू बाई सू पैसे बचाने लगे। मिस्टर लोइजल भी इससे अछूता नहीं रहे, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव करना पड़ा। Besides doing work in the office, she started
doing some part-time jobs. She began every evening after coming from the office, he kept the book of some merchants. उसका खाता बही लिखते थे merchant का. He kept the book of some merchants, and many a days in a week he used to work paper copying work, and for copying each paper he charged 5 sous. In Indian condition it may be 5 paise or 5 rupees. इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके लोइजल फैमिली को जिंदगी आगे ले जाना पड़ा. और बच्चों, the life of this hardship continued for 10 years. And at the 10 years, at the end of the 10 years, they were able to clear all their dues and debts. Now what happened to Matilda in these 10 years? Matilda was completely changed. She lost her physical beauty. She lost the glow of her countenance, and wrinkles started showing all through her physique. Now Matilda was not careful about the type of the dress she wore. She was not careful about the look she presented. She didn't care whether her tresses, julfe, whether her tresses were dressed or not. She became a lady of a normal household work. She became irritated also. While doing some domestic work, maybe the washing the floor with a large trench of water, she used to talk to herself, no one around. But she started murmuring. She was so depressed that even at the light question of somebody, so she used to speak loudly as if to abuse the questioner. It was the activities of a person completely depressed. Okay? But my dear students, your past never leave you. As long as you are breathing, your past life continues to haunt you. When the husband of Matilda went to his office, Matilda खिड़की के पास आती, चुपचाप बैठ जाती. खिड़की के बाहर वह उस शाम को याद करती, उस वर्ष के उस शाम को याद करती जब वह बॉल पार्टी में गई थी. उसे याद आता, how beautiful she appeared that evening in the ball party. How pretty she was, and what the esteem she carried among the persons present there. She questioned herself. Internally वह सवाल रिफ्लेक्ट करती थी. She reflected internally. वह एक सवाल का जवाब जानना चाहती है कि अगर डायमंड नेकलेस नहीं खोता तब उसका जीवन कैसा होता. वह खुद ही आंसर देती है. Who knows? No one knows what happens next minute, next second, next hour. Or वह एक लॉजिक she comes to understand the
hard truth of a human life. How strangeful, how eventful is the life of a man. How full of changes is the life of a man, and how a small a thing can either ruin a personality or save it. एक छोटी सी घटना या तो किसी की जिंदगी को बना सकता है या किसी की जिंदगी को बिगाड़ दे सकता है। यह समझ उसको तब आती है जब वह अपना सब कुछ खो चुकी रहती है। बच्चों, कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन सप्ताह भर के काम से मटिल्डा काफ़ी थक गई थी। इतवार का दिन था और वह अपने ये एटिक के नीचे आकर एक जगह है जिसका नाम है कैंपस एलजी, वह उसी में वह वॉकिंग करती रहती है, टहलती रहती है कि एकाएक उसकी नज़र पड़ती है मैडम फ्रॉस्टियर पर, जो एक छोटे से बच्चे के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। मैडम लोइजर ने तो उसको पहचान लिया और लपक कर वह उसके पास गई उससे बात करने के लिए। वह उसको एड्रेस करती है, फ्रॉस्टियर फ्रॉस्टियर। फ्रॉस्टियर उसको देखती है लेकिन उसको पहचान नहीं पाती। वह कहती है कि तुम कौन? मैंने तुमको नहीं पहचाना। देन मटिल्डा इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ इन द बैकड्रॉप ऑफ द लॉस्ट डायमंड नेकलेस। अरे तुमको याद है, तुम्हारे पास हम आए थे एक वर्ष एक डायमंड नेकलेस लेने के लिए, मुझे बॉल पार्टी में शामिल होना था। अरे हाँ हाँ याद है। अरे तुम मैडम लोइजल हो? हाँ मैं वही मैडम लोइजल हूँ। अरे तुमने क्या, तुम्हारा क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम तो पहचान भी नहीं आती। कहाँ चली गई तुम्हारी सारी सुंदरता? तुमको तो कोई देखकर पहचान ही नहीं पाया। इतना बोलना था, मैडम लोइजल फिर से अपने ओल्ड फॉर्म में आई। पुराना उसका जो ईगो था वह जगा कि कोई उसको बदसूरत कह रहा है, कोई उसको पहचान नहीं रहा है। वह बड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहती है, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू। अरे मेरे कारण है? मेरे कारण कैसे? तुम्हारे ही कारण। तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया, वह डायमंड नेकलेस खो गया और मैंने जिस डायमंड नेकलेस को लौटाया, ठीक है, उसे मुझे तुम्हें खरीद कर देना पड़ा, इतना महंगा पैसा। तुम जानती हो कि हम तुम्हारे इतना धनी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे खरीद कर देना पड़ा। इतने रुपए लग गए कि उस रुपए को सधाने में ही मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो, मेरा पूरा डोमेस्टिक लाइफ बर्बाद हो। अरे तो तुमने मुझे डायमंड नेकलेस खरीद कर लौटाया? हाँ, तुमने उस दिन उसे नहीं देखा। मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस का बॉक्स दिया था, तुम सीधे लेकर उसको जाकर अपने ये क्लोजेट में तुम बंद कर आए। तुमने सिर्फ मुझसे इतना ही कहा था कि तुम्हें थोड़ा और जल्दी लौटाना चाहिए था। उसके बाद तुमने उसे खोल कर नहीं देखा। अरे तो तुमने सचमुच मुझे डायमंड नेकलेस खरीद कर लौटाया? हाँ। मैडम फ्रॉस्टियर, आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ मटिल्डा, स्माइल्ड and she simply said in a sorrowful tone, the diamond necklace I borrowed you was an artificial one and it was not worth of 500 sous. मैंने तुम्हें जो डायमंड नेकलेस दिया था वह नकली डायमंड नेकलेस था। अरे वह तो 500 सू का भी नहीं था। and the story comes to an end. Okay. तो बच्चों, ये थी कहानी मटिल्डा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज बस यही तक। आपको मैं 2 सवाल दूंगा इस पर लिखने के लिए, जो आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा। उसका आंसर आप लिख के लेते आइएगा, जिसको हमने आपको दिखाई। थैंक यू वेरी मच।